Let's begin for this wonderful session. And it's going to start a new series on 10x rule. Very, very important. I tried to mention it many, many times about 10x. I keep referring it again and again, and it's going to help us in understanding what 10x rule is and how it is really important for us or for any company that wants to be successful or for any venture or project that wants to become successful. This is based on a famous book called as 10x Rule by Grant Cardone. He's one of the business gurus, Big Shot, and he came up with this concept where he has outlined this rule and its intricate parts. We will be covering the session in 3 different parts because it's very, very interactive, very, very nice. And I want to drive this topic really home. So the session is also going to be interactive. So that with every concept that we learn or every slide that we learn, we can talk about it. We can answer our responses and we can make sure we understand and ask questions and so on. Okay. So let's start. Only difference between success and failure. So this great management business guru, Grant Cardone, he came up with this concept and he struggled hard to find one thing that can make the difference between a company failing or a project failing and becoming successful. तो हार और जीत देखो इस पार या उस पार हम जब बात करते हैं ना, हार होती है, जीत होती है, फेलियर होता है, सक्सेस होता है. तो जब डुअलिटी में बात करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट के टर्म्स में हम बात करते हैं ना, तो ही वांटेड टू फाइंड वन फॉर्मूला. तो कोई पूछेगा अरे बिजनेस सक्सेस करने का क्या फार्मूला है, तो you may come up with 100 things, right? Or some other, a lot of different business gurus or management people will come up, each will come up with their own checklists. तो कोई बोलेगा कस्टमर्स पे ध्यान दो, कोई बोलेगा कि वैल्यू प्रपोजिशन ठीक होना चाहिए, कोई बोलेगा हार्ड वर्क करो, है ना, कोई बोलेगा कैपिटल होना चाहिए, कनेक्ट्स होना चाहिए, कॉन्टेक्ट्स होना चाहिए, कोई बोलेगा फास्ट डिलीवरी होना चाहिए, someone will say unique product matters and so on. तो हर एक के अपने अपने फॉर्मूले. So this person wanted to find one formula जो बताया जा सके आउट एंड लाउट, सबके लिए एप्लीकेबल हो और कॉमन फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला ऐसा कुछ हो जिसको हम बता सके कि ये फॉर्मूला अप्लाई करो, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर. सो इफ यू आर फेलिंग, अप्लाई दिस एंड यू विल बिकम 100% यू विल बिकम सक्सेसफुल. तो वो रूल का नाम उन्होंने दिया है 10x रूल. तो 10x नाम से ही कुछ समझ में आ जाता है काफी सारी चीजें हमें, ठीक है, कि समथिंग इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 10, x इज द अननोन. x क्या है हम जानेंगे, हमने एल्जेब्रा पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, कुछ लोग को याद होगा. तो हम x सॉल्व फॉर x करते हैं चीजों के लिए जो अननोन होता है, और उसमें हम x डाल देते हैं और फिर एजम्पशन करके सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और लास्ट में x की वैल्यू आपको मिलती है. तो इसमें x क्या है पता चलेगा. 10x रूल इज द ओनली फॉर्मूला दैट इज आउटलाइंस द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर. तो एक ही गुरु मंत्र है ये, इन्होंने एक ही बताया है, एक ही रूल के रूप में. तो क्या है विल अंडरस्टैंड. ठीक है, लेट्स गो राइट इनटू द टॉपिक. Introduction, we'll understand what is 10x rule, what is the introduction in this beautiful slide. Then what is the 10x rule, why 10x rule is vital, why it is important. Then how success is your duty and not just a responsibility, it's your duty. How it is, we'll know. And there is no shortage of success. Assume control of everything and 4 degrees of action. तो ये चैप्टर हम आज इसमें देखने वाले. ठीक है, ओके, लेट्स गेट राइट इनटू इट. तो ये स्लाइड बहुत अच्छे हैं, सुंदर है, ये विजुअल है, आपको समझ में आएगा तुरंत. ठीक है, तो एज आई सेड 10x का मतलब क्या होता है. 10x का मतलब होता है 10 से मल्टीप्लाई करना किसी भी चीज को. आपने x ले लिया, x इज अननोन, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया. तो एज आई सेड अर्लियर, व्हाट इज द वन क्वालिटी, एक्शन or mindset that ensures extraordinary success. Extraordinary word is very, very important because as we will learn in this session, average success doesn't count. Average work doesn't count at all. In this competitive age, average work doesn't count. Everyone wants to do average work and all they end up in the end is the average success. So we are not talking about average success in this rule. तो ये रूल की टर्मिनोलॉजी जब हम सीख रहे हैं, वी विल बी टॉकिंग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस एंड नॉट एवरेज सक्सेस. गूगल इज नॉट एवरेज सक्सेस, गूगल इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस. नेटफ्लिक्स इज नॉट एवरेजली सक्सेसफुल, Netflix is extraordinarily successful, and so is Yahoo, and so is Microsoft, and so is Infosys, and so is all the other big names that we keep hearing. So is Apple.
So we'll be talking about extraordinary success and not average success. The idea is, what is the one rule, what is the one mantra, what is the one success quality that will make the difference between success and failure. तो 10x रूल को अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं. इट इज अ डिसिप्लिन, नॉट एन एजुकेशन, अ गिफ्ट, टैलेंट और अ गुड फॉर्च्यून. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपको कैपिटल मिल जाएगा या कोई एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे कि आपको कोर्स करना है 10x रूल पे जाके 1 साल का, कोई गिफ्ट दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स अ डिसिप्लिन, इट्स अ माइंडसेट. अगेन आई कीप टॉकिंग ऑफ दिस टर्म अ लॉट ऑल्सो, कि जो भी हम सेशंस करते हैं, जो भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं ना, these are not like something that you will have to follow for one day. These are more of a mindset. तो जैसे जैसे हम ये चीजों को समझते हैं, आपके मेंटल मॉडल्स बनते हैं. यू डेवलप योर ओन मेंटल मॉडल्स टू बी एबल टू जज whether the decision is right or not, to be able to take good decisions, to be able to understand कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में. तो हम लोग एम्पावर हो रहे हैं. तो ये सारे टॉपिक्स हमारे लिए सेकंड नेचर का काम करते हैं. we'll develop these models. Then what else? It simplifies and demystifies what success is and what it takes to be सक्सेसफुल. तो ये एक ही रूल में पूरा उन्होंने आउटलाइन कर दिया है कि सक्सेस क्या है और सक्सेसफुल बनने के लिए क्या लगता है. देन इट इज अ होली ग्रेल फॉर दोज हु डिजायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस. होली ग्रेल यानी इट्स लाइक द मेन एसेंशियल स्पिरिचुअल मंत्रा और फॉर्मूला फॉर द वन हु डिजायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस. तो कोई बोलेगा कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, कोई बोलेगा मेरे पास कैपिटल नहीं है, कोई बोलेगा मेरे पास कस्टमर्स नहीं है. आई एम टॉकिंग ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स और बिजनेस स्टार्टर्स. So everyone will have their own problem. Someone doesn't have contacts, someone doesn't have a good product, someone doesn't have good customer relationships, someone doesn't have manpower, and so on. Every businesses will have their own problems. But what is the holy grail? What is the one formula that can still make them reach to extraordinary success? That is 10x. तो ये इतना कीमती है, इतना पावरफुल क्यों है, हम धीरे धीरे जानेंगे. ठीक है. Then you can also say it's one ingredient that all successful people know and use in order to create the lives they desire. So we know of Hollywood celebrities, we know of Bollywood celebrities, we know business tycoons in India and abroad. We have heard names that are household names, even kids know them, the names that are famous all over the world, for example, Amazon or Google. These are the people who have created the lives that they desire. How? By using the 10x rule. They may not have called it 10x rule, but they are essentially working with the same mantra, same philosophy. ठीक है. तो कोर सक्सेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस की जो फिलोसफी है, उसको आज हम नेल डाउन करने वाले हैं. ठीक है. सो दैट इज इंट्रोडक्शन. नाउ लेट्स सी व्हाई, व्हाट आर द मिस्टेक्स हैपन व्हेन वी सेट गोल्स. तो कोई भी देखो, गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम गोल्स के बारे में बात करते रहते हैं. गोल्स कम इनटू एवरीथिंग वी डू. आप पढ़ाई करते हैं तो गोल होता है, कुछ चेकलिस्ट बनाते हैं, आप कॉन्फ्लुएंस पे लिखते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते ही हैं कोई भी काम के, है ना. फैमिली टास्क हो, घर का टास्क हो, आपका ऑफिस का हो, गोल्स हो, एग्जाम है, कुछ भी है, बिजनेस है, स्पेशली प्रोजेक्ट्स हैं, तो यू क्रिएट गोल्स. व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट हैपन इन क्रिएटिंग दीज गोल्स? तो कुछ मिस्टेक्स होती है हमेशा. एक होता है मिस टारगेटिंग. मिस टारगेटिंग का मतलब होता है सेटिंग एन ऑब्जेक्टिव टू लो. देखो, हमने सेट किया कि हम गो लाइव जाएंगे, है ना, सितंबर में. क्या हुआ हमें पता है. वी रैन इनटू इश्यूज दैट वी डिडंट नो, इजंट इट? Google or Apple or Facebook and these big guys will keep changing their policies. They will not call us, okay, hello, I am changing my policy tonight, so you will run into problems, so you better keep your offer in time, right? But we did face problems, right? We lost our hard-earned time. Why? Because we mistargeted. We misjudged the objective. हमने बहुत छोटा ऑब्जेक्टिव रखा. छोटा ऑब्जेक्टिव क्या रखा? We set the deadline to lose. ठीक है. Then let's see the second problem that happens. Severely underestimating what it will take in terms of actions, resources, money and energy to accomplish the target. एक तो मिस टारगेट बनाते हैं लोग, दूसरा अंडर एस्टिमेट करते हैं. देखो, हमें क्या लगता है, जितने भी आज तक प्रोजेक्ट्स हुए हैं, नॉट जस्ट अस और अदर कंपनीज और सो ऑन, कितने भी आईटी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, और भी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनकी जो भी प्लानिंग होती है, वो 90% फेल ही होती है. क्यों फेल होती है पता है क्या? क्योंकि लोगों को लगता है ये 1,000 रुपए में हो जाएगा, लोगों को लगता है ये 1 महीने में हो जाएगा, लोगों को लगता है इसमें 10 लोग लगेंगे, लोगों को लगता है इसमें 1 हफ्ते में हो जाएगा. बट ऐसा कुछ भी नहीं होता. दे ऑलवेज एंड अप अंडर एस्टिमेटिंग what it will take some tons of actions, resources, money and energy.
क्यों? क्योंकि दे डोंट कैलकुलेट अनफोर्सिएबल सर्कमस्टांसेस। कोई बीमार हो जाएगा टीम मेंबर, ये किसी को पता नहीं होता, राइट? कोई बिजली गिर जाएगी फैक्ट्री पे और सब जल जाएगा, ये किसी ने एस्टिमेट नहीं किया होता, है ना? या प्रोजेक्ट क्लाइंट आपके सेकंड लास्ट डे पे आएगा और आपका सारा रिक्वायरमेंट स्क्रैप कर देगा, दूसरा दे देगा आपको 2 दिन पहले गो लाइव के, तो ये किसी ने एस्टिमेट नहीं किया होता, राइट? प्रोजेक्ट मैनेजर आएगा एंड ही इज इन अ बिग मूड, वो फायर कर देगा आधी आधी मैन पावर। तो इस तरह की चीजें किसी ने एस्टिमेट नहीं की होती ना। या फिर गवर्नमेंट ने लॉ चेंज कर दिया और आपका 10x पैसा लगेगा अब उसी चीज में आपने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया है उस प्रोजेक्ट के लिए, आपको पता चला कि 10 लाख लग गए, तो कहां से लाओगे बाकी का? तो ये जो पंगे हैं, ये कोई एस्टिमेट नहीं करता ना। सो दिस इज सीवियरली अंडर एस्टिमेटिंग द रिसोर्सेस रिक्वायर्ड और एक्शंस रिक्वायर्ड, ठीक है? ये एक दूसरी प्रॉब्लम होती है, हर गोल में होती है, ये ऐसा नहीं बता रहा हूं कि कोई हम गोल बनाते हैं तो ऐसा होता है। ओके, सो सीवियरली अंडर एस्टिमेटिंग व्हाट इट टेक्स इन टर्म्स ऑफ एक्शंस, रिसोर्सेस, मनी एंड एनर्जी। देन स्पेंडिंग टू मच टाइम, ठीक है? स्पेंडिंग टू मच टाइम कंपीटिंग एंड नॉट एनफ टाइम डोमिनेटिंग। तो डोमिनेटिंग का माइंडसेट ही नहीं है हमारे पास। हम सोचते हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट कर लेना ही एनफ है ना? हमारी डेडलाइंस कैसी होती हैं कि ये गो लाइव जाना है, ये चार्ट बनाना है, ये रिपोर्ट बनाना है। लेकिन डोमिनेटिंग का माइंडसेट नहीं होता कभी कि बेस्ट करना है, जो करना है ये ऐसी रिपोर्ट होनी चाहिए, इट शुड बी द बेस्ट इन इट्स फील्ड, या ये ग्राफिक बनाना है, इट शुड बी द बेस्ट एवर क्रिएटेड। ये गोल ना होने की वजह से क्या होता है पता है क्या? वी फॉल इन द एवरेज रिजल्ट। तो एवरेज रिजल्ट आते हैं, एवरेज रिजल्ट आते हैं, देन वी एंड अप कंपीटिंग, एंड व्हेन वी compete देयर आर ऑलवेज कॉम्पिटिटर्स टू take us down, to pull our leg, make us make us run out of business as soon as they take the next step. So you don't have to take that zone, you have to think of dominating. Then fourth is underestimating. Underestimating what? Underestimating the amount of adversity that will need to overcome in order in actually attain desired goal. इसका मतलब होता है कि हमें जो एडवर्सिटी यानी अनफोर्सिएबल प्रॉब्लम्स, हम उसको भी अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं, किसी टीम मेंबर का माइंडसेट ही चेंज हो गया। जो बंदा गोल को प्रोजेक्ट को हेड कर रहा था उसकी फैमिली प्रॉब्लम आ गई, जो बंदा प्रोजेक्ट को हेड कर रहा था उसका दिमाग खराब हो गया, उसने छोड़ दिया प्रोजेक्ट। तो देखो कुछ भी हो सकता है ना। और ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस एग्जांपल्स हैं, ये होता ही है, हम सब ने फील किया है, ये डेली बेसिस पे होता है, लाइफ में भी होता है, सभी जगह पे होता है। लेकिन फिर भी हम इतने नाइव हैं कि हम ये सब चीजें अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, हाँ इसको 1 हफ्ता लगेगा, उसको 2 हफ्ता लगेगा। क्यों? क्योंकि हम सब सारा हैप्पी पाथ ही देखते हैं ना। तो टेस्टर्स नो दैट देयर आर एज केसेस, ऑलवेज देयर आर ऑलवेज एज केसेस। इट्स मोर इंपॉर्टेंट टू लुक फॉर एज केसेस रादर देन हैप्पी सिनेरियो। तो ये गोल सेटिंग के वक्त भी हैप्पी सिनेरियोज ही हम देखते हैं। तो ये हैप्पी लकी जो पाथ है ना, बिकॉज ऑफ दिस वी रन इनटू। तो 10x जो है, 10x इज योर शील्ड नाउ, 10x इज योर सॉर्ड टू कट दिस, ठीक है? ये जो मूर्खताएं होती हैं, ये जो बैड प्लानिंग होती है, मिस टारगेटिंग होती है, अंडर एस्टिमेशंस होते हैं, टाइम हमें ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है जितना हम सोचते हैं उससे हमेशा ही। ये क्यों होता है? इस सारी चीजों को कट करने के लिए 10x रूल। तो ये सब कॉन्टेक्स्ट आपको बताया जा रहा है सो दैट यू रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। नहीं तो किसी को लगेगा अरे मैं 10x करके बड़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिस इज ट्रू एंड वी ऑलवेज एंड अप अंडर एस्टिमेटिंग। सो व्हाई 10x इज इंपॉर्टेंट, यू विल नो व्हाई, टू ओवरकम ऑल ऑफ दिस stupidity, naivety in planning, ठीक है? Now let's see what is normal versus extraordinary. Before we jump into the 10x rule chapters and exercises, let us see what is normal versus extraordinary. देखो, दो होता है, जैसे मैंने बताया कि only you know your true potential and whether you are living up to it. No one else can judge your success. So that the other day I was talking to someone and I brought up this topic that whenever someone does their work or submits anything, they know whether it's best quality or not. So when I ask, is this your best work? Most of the time people take it back. मैं थोड़ा और ठीक करके आता हूँ उसको। अरे पहली बार दफे में ही ठीक बनाओ ना। See, you always know what your true potential is. I know what my true potential is. तो हम जब किसी चीज पे काम करते हैं, छोटी सी चीज भी रहने दो, भले ही एक कोड फिक्स रहने दो, एक बग फिक्स रहने दो, आपने उसको 10% एफर्ट लगा के किया, आपने उसको 50% एफर्ट लगा के किया, आपने उसको 100% एफर्ट लगा के किया, ये तो एफर्ट की बात हो गई। लेकिन आपने किस क्वालिटी से काम किया? आपको 10 चीजें पता थी, आपने वो कंसिडर ही नहीं किया, आपने टेक्निकल डेट बढ़ाया। आई एम जस्ट गिविंग अ कोड एग्जांपल। तो एटलीस्ट नो तो करो, उसको एक्नॉलेज तो करो कि हाँ मैंने टेक्निकल डेट सॉल्व नहीं किया है, अभी अभी मैंने सिर्फ पैच वर्क किया है, कम से कम एडमिट करो उसको।
because we know our true potential, right? We know what we are creating. If we are creating a mess, we are creating a mess. If we are creating a good quality, we are creating a good quality. If we are creating best quality, we are creating a best quality, right? But we know it nonetheless. तो नॉर्मल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच में फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है. देन लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड पॉइंट, which is failed diets, failed marriages, and finances and projects are all the result of not taking enough action. So this may sound very hard to some of you, but it is true. तो हम जो भी गोल्स बनाते हैं, हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, हम लाइफ पार्टनर्स को चुनते हैं, हम फाइनेंसेस सिक्योर करते हैं, कोई ब्लैक स्वाइन आता है, कोई स्टॉक बबल आता है, हमारा पूरा फाइनेंसेस वाइप हो जाता है, हमारा फेल डाइट, हमारा गोल्स फेल हो जाते हैं. क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डोंट टेक एनफ एक्शन, बिकॉज वी गिव अप, है ना? बिकॉज वी गिव अप ड्यू टू अवर ईगो, कि इतना क्यों करने का, मैं ही क्यों सॉरी बोलने का, मैं ही क्यों इतना हार्डवर्क करने का, या ये गुम हो गया प्रोजेक्ट तो भी मैं एक रात में दोबारा कर सकता हूँ क्या, तो हम गिव अप कर देते हैं. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी गिव अप, एंड दैट्स व्हेन वी लूज, दैट्स व्हेन वी not take enough action, that's when we decide कि I'm not going to take any more action on this, that's when we fail actually. ठीक है? A person who limits her potential success will limit what she can do to create it and keep it. ठीक है? तो जो पर्सन लिमिटेड टारगेट बनाता है, देखो हम थिंक बिग सुनते हैं, राइट? सबने सुना है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी हैं इन पे, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, द मैजिक ऑफ थिंकिंग वाइड एंड सो ऑन, राइट? तो क्यों बता रहे हैं उसमें, यू कैन विन में, थिंक बिग में क्यों बताते हैं कि आप अपनी टारगेट ही अगर छोटी रखते हैं, आपको अगर 1,000 रुपए की नीड है फॉर एग्जाम्पल अपने डे एक्सपेंसेस चलाने के लिए, और आप 1,000 रुपए का एक गोल रखते हैं ना, then again you are doing the same problem जो हमने अभी देखा, you are mistargeting because you are not estimating other problems, you are not estimating your kids may ask for additional things, you are not estimating diseases, you are not estimating earthquakes, you are not estimating your house may burn down someday. See, anything can go wrong, so your happy path scenario will never work out. So if you keep your target too low, then you are already limiting your potential to क्रिएट द टारगेट. फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्रिएट ही नहीं होगा, आपका वो गोल अचीव ही नहीं होगा इतने छोटे टारगेट की वजह से, क्योंकि आप उतना एक्शन ही नहीं लेंगे. और कीप इट तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि कीप कर, देखो सक्सेस को पाना एक फैक्टर है, देन सक्सेस को पाके उसको संभालना ये दूसरा फैक्टर है. ठीक है? गूगल 2004 में ही $1 बिलियन कंपनी बन गया था. गूगल व्हेन इट स्टार्टेड 98 और समथिंग, आई डोंट नो, 2004 it got listed, and it was already a $1 billion company by 2003 or 4 itself, before they went this thing. But are they bankrupt right now? No. Why are they not bankrupt? Because they are also very good at making the success and also keeping it, maintaining the success, not only keeping it but growing by leaps and bounds. तो देखो हम लोग ड्रीमर्स हैं, हमें क्या लगता है कि हम ये बुक लिख लेंगे तो सक्सेस हो जाएगी, हम ये फैमिली को सेट कर लेंगे तो सक्सेस हो जाएगी, हम अपनी ड्रीम जॉब ढूंढ लेंगे, या हम अपना ड्रीम प्रोडक्ट बना लेंगे, ड्रीम सुपर फैंस 10 मिलियन सुपर फैंस बना लेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट अचीव हो जाएगा. ऐसा नहीं होता ना. 10 मिलियन सुपर फैंस के बाद क्या करोगे? वो 10 मिलियन सुपर फैंस फिर भाग जाएंगे अगर अगले दिन से काम करना बंद कर देंगे हम, तो राइट? तो सक्सेस पाना इज फर्स्ट स्टेप ओनली, सेकंड स्टेप इज टू मेंटेन दैट व्हील. तो ये भूल जाते हैं, दिस इज अनदर अंडर एस्टिमेटिंग. हम गोल का पहला पार्ट ही देखते हैं, कभी भी सेकंड पार्ट हमें पता ही नहीं होता. So this is the difference between normal and extraordinary. Normal people do this mistakes. Normal means all of us. Okay? And the difference in extraordinary. We'll see now what is, now we are getting into what is 10x rule. ठीक है? और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये छोटा सा नंबर है 10x, कि इसमें क्या इतना मैजिक है इतना क्यों उसको 10x करके क्यों लिखा है, उसको 2x क्यों नहीं लिखा, 5x क्यों नहीं लिखा, 10x क्यों लिखा है, x क्या होता है, ये सब समझ में आएगा. 10x रूल का फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखा है. 10x का मीनिंग होता है थिंक मैसिव एंड ब्रॉड व्हाइल सेटिंग योर गोल्स, व्हिच इज एटलीस्ट 10x. यू कुड गो 20 आल्सो, बट 10 इज एटलीस्ट समथिंग मिनिमम यू शुड थिंक ऑफ. 10x योर गोल्स प्लस 10x योर एक्शंस. तो सेकंड पार्ट हमें याद नहीं रहता जैसे मैंने बताया कि अगर आपने 1x का गोल बनाया, आपने 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल बनाया, तो 1000 सब्सक्राइबर अचीव हो गए. 1000 सब्सक्राइबर पहले तो अचीव ही नहीं होंगे उस गोल से, क्योंकि आपका गोल छोटा है ना, तो आप उतनी ही मेहनत करने वाले हैं उसके लिए. आप रात रात भर नहीं बैठेंगे फिर उसके लिए, आप हार्डवर्क नहीं करेंगे टू गेट मोर पीपल. इफ योर ओनली गोल इज टू गेट 1000 पीपल, then you will only work so much hard to get 1000 only, and that goal also will not be achieved. Why? Because of those problems that I mentioned, because of mistargeting, because of you are not estimating for unforeseeable problems. So you will never get there.
तो दैट्स वाई 10x ऑफ योर गोल्स। तो आपको अगर लगता है कि मेरा गोल है 1 लाख रुपए कमाना, फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टेकिंग अ सिंपल एग्जाम्पल, तो आप उसको 10x कर दो। तो आप 10 lakhs कमाने के गोल के हिसाब से यू विल स्टार्ट, दैट इज योर गोल। बट इज दैट सफिशिएंट? नो। What is the next part? Next part is 10x your actions. Because if your actions align with your 10x goal, only then you will be able to buffer and cushion out, iron out all the unforeseeable problems that are going to occur. तो कोई अर्थक्वेक आ जाएगा, कोई चोर आ जाएगा आपके घर में, या आपका बिजनेस पूरा बैंकरप्ट हो जाएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, बंदे छोड़ के चले जाएंगे, स्टार्स छोड़ के चले जाएंगे, है ना, कस्टमर चले जाएंगे। तो ये सारे तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको कुशनिंग कैसे होगा? इसको कुशनिंग कर लेगा ये आपका जो स्ट्रेटेजी है, 10x का जो स्ट्रेटेजी है, 10x रूल उसको कवर करता है ऑलरेडी। तो व्हेन वी गो फॉर 10x, व्हेन वी एम फॉर 10x, what you get is something like 5x, or what you get something like 6x। तो ऐसा मत सोचना कि 10x भी करोगे तो 10x हो जाएगा, because there will be problems, but 10x is going to cushion out, 10x is going to cushion out your problems, it's going to save you, it's your hard work, rather let's say your goals, basically first of all 10x goals, and then 10x the efforts or actions or hard work as you may call it, together will save you, together will save your day, come what may। तो कुछ भी हो जाएगा, आपका 10x आपको बचा लेगा किसी भी गोल में, नॉट जस्ट बिजनेस और कंपनी, बट इन एनी प्रोजेक्ट दैट यू